Assalamualaikum. Dr. Asad, I think we should wait for 1 or 2 minutes. जी मेरे ख्याल में थोड़ा वेट कर लें अभी थोड़ा सा Sure. Assalamualaikum. I think we should start. Assalamualaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director Operations at Parsa Eco Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to the Echo session in series of digestive disease Echo. It's in collaboration with Rising Foundation, and we are thankful for Gets Pharma for unrestricted educational grant. Today's session is titled Eliminating Hepatitis, and our expert for today's session is Dr. Asad Ali Choudhry. This session is arranged specially on World Hepatitis Day, which takes place every year on 28 July, bringing the world together under a single theme to raise awareness of the global burden of viral hepatitis. This topic is very close to our heart as Parsa Eco Pakistan is affiliated with Parsa Trust, which is committed to provide free healthcare to patients of all socioeconomic strata. With the help of free clinic, they are contributing in prevention and cure of hepatitis and promote research and educational programs. No patient is denied treatment simply because he or she can't afford it for the past 7 years. Before I introduce to our expert for today's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or person. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for question or use the raised hand option and chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of folks, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert for today is Dr. Asad Ali Choudhry. He is a fellow of Royal College of Physicians, Edinburgh. He has a vast experience of working in community with NGOs and special interest being project related to elimination of hepatitis in Pakistan. He attended the immersion training in September 2017 in Albuquerque and started Health Net Eco Pakistan in November 2017, later known as Parsa Eco Pakistan. He has introduced ECHO as on every relevant forum and engaged leading specialists nationally and internationally to partner the ECHO movement. At the present, he
He is Senior Vice President, Pakistan Society of Hepatology and Director, Parsa Echo Pakistan, which has now got the status of Super Hub. I would like to now hand over to Dr. Asad. Dr. Asad. Assalamu alaikum. Thank you very much. Can you hear me? Okay. Thank you, Kiran. Thank you very much. And I think that this is a very important topic, and today is World Hepatitis Day. And this has special significance as far as we are concerned, because I represent a lot of forums, actually, Pakistan Society of Hepatology, which is an active member, and also a president-elect of Pakistan Society of Hepatology. With Parsa Trust, we started the journey a few years back, and it's gaining momentum. And we are taking care of patients with hepatitis or in treatment as far as PCR test facility, mostly free, highly subsidized. Similarly, antiviral treatment with sofosbuvir and daclataspid for hepatitis C, hepatitis B virus vaccination, and of course, raising awareness. And with Project ECHO, which has really amplified our efforts and to reach out all across Pakistan, talking about some basic stuff, some advanced stuff about hepatitis treatment. And I'm extremely grateful to my colleagues here, especially Professor Altaf Alam, Dr. Zishan, Dr. Bushra, and a lot of other hepatologists who are with me, the team from Sheikh Zayed Hospital led by Professor Kashif Malik. So today, मैंने आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको पाकिस्तान की एक पिक्चर प्रेजेंट करना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं. हेपेटाइटिस एलिमिनेशन हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसमें अगर अचीव करना है तो ये कैसा होगा. और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये आप लोगों के बगैर नहीं हो सकता. यहाँ मैं ये भी बता दूं कि दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं. वन इज एलिमिनेशन एंड द अदर इज एरेडिकेशन. एरेडिकेशन का लफ्ज आप पोलियो के लिए अक्सर देखते हैं कि जो पोलियो में हम एरेडिकेशन की बात करते हैं, और पोलियो की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप डिजीज को जीरो पे ले आए. पाकिस्तान अभी भी उन मुल्कों में है जिनमें ट्रैवल एम्बार्गो है पोलियो की वजह से, और अनफॉर्चुनेटली पोलियो अब वेस्ट से भी रिपोर्ट होना शुरू हो गया. मैंने एक न्यूज आइटम देखा था, शायद फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स और अ डेकेड अमेरिका में भी एक पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ है. प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ट्रैवल बहुत होता है और इसी तरह ये डिजीज कैरी होती है. इसी तरह हमारा ये भी खदशा है कि अगर हेपेटाइटिस को हम वक्त पे कंट्रोल ना कर सके और दुनिया से पीछे रह गए, तो आज से 15-20 साल बाद शायद हम पे हेपेटाइटिस की वजह से भी ट्रैवल एम्बार्गो लगना शुरू हो जाए. तो मैं आपके साथ हेपेटाइटिस सी की बात करूंगा. टॉपिक है फ्रॉम क्योर टू एलिमिनेशन. क्योर अब इतनी मुश्किल नहीं है. अगर सादे लफ्जों में कहूँ कि जी बाएं हाथ का खेल है दवाइयों के साथ, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि 95% प्लस पीपल में क्योर इन टर्म्स ऑफ SVR, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो हम अचीव कर लेते हैं. अब हेपेटाइटिस सी के लिए चैलेंज एलिमिनेशन है, बी हो या सी हो, क्योंकि ये वो दो चीजें हैं जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस कॉज करती हैं, और हमारे हाँ इसको काला यरकान भी कहा जाता है. ये वो तस्वीर है जो आप लोगों के लिए नई नहीं है, आप जरा कम नजर आती है, लेकिन आप आज भी टीवी वालों को जब फुर्सत मिलती है सारे ड्रामे से, तो कहीं ना कहीं पे सुबह के वक्त मैं जरूर देखता हूँ कि कोविड का क्या रेट है. तो ये आज से शायद एक हफ्ता पहले की फिगर्स हैं. यहाँ पे 600 नए केस रिपोर्ट हुए. बाय द वे आज भी इसके करीब भी थे. अभी तक कोविड जब से NCOC और NIH का डेटा है, अराउंड
30,500 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं कोविड से रिलेटेड। और आप सारा ब्रेकअप देख सकते हैं कश्मीर से लेके सिंध तक के कोविड का क्या है। थोड़ा सा आप इधर भी फोकस करें हेपेटाइटिस सी के बारे में। कोविड कितनी डेथ्स कर रहा था और हेपेटाइटिस सी कितनी डेथ्स कर रहा है। We have 8 million individuals with hepatitis C. Prevalence is 4.8%. Around 500,000 people who are living with cirrhosis. Around 80,000 decompensated cirrhosis and 25,000 with liver cancer. These are phenomenal numbers. आप सब लोग पेशेंट्स मैनेज करते हैं और आप इनको देखते हैं कि कितनी कॉस्ट है टू मैनेज दीज पेशेंट। Around 64 hepatitis C related deaths per day or 24,000 hepatitis C related deaths per year. तो यहाँ पे आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये साजिश और मदाखलत है या क्या है। मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रियलाइज करें कि हम कितने बड़े चैलेंज के साथ हैं। यहाँ पे ये भी बात समझ में आती है कि जिस चीज को मीडिया उठा दे वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। जिस चीज को मीडिया लिफ्ट ना कराए और अथॉरिटीज लिफ्ट ना कराएं, हम वहां कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ये पुरानी स्लाइड है एंड यू कैन सी द पीपल हु आर अफेक्टेड विद हेपेटाइटिस आर at the prime of their life between 20, this is data for around more than 10,000 people and 77% of the patients were between 20 to 50 years. ये वो एज है जहाँ पे ब्रेड विनिंग मेंबर्स होते हैं और unfortunately you know when they get hepatitis C at an early age and if they are left unaware or they are not treated, they develop cirrhosis of the liver and then life-threatening complication, and they die in between 45 to 60, which is a terrible thing to happen. थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, हमने एक प्रोजेक्ट किया था गुजरांवाला और अराउंड we chose 5 centers, Gujranwala, Gakhad, Kila Didar Singh, Kolluwala, where doctors and paramedics were actively engaged through project echo training. Total patients जो वहाँ पे screen हुए थे, they were close to 11,000. Hepatitis B की जो prevalence थी वो 2.5% थी. Hepatitis C around 23%, 2,472 patients who had anti-HCV positive. ये थोड़ी सी फिगर आई वुड से कि बायस भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, वो फिर भी क्योंकि फ्री कैंप्स होते हैं आके ट्रीटमेंट कराते हैं. जो अलार्मिंग चीज है, इन 2000 तकरीबन 2,500 लोगों में से 900 लोग हैं जो दोबारा फॉलोअप के लिए आए. हमें तकरीबन 1600 लोगों का कुछ पता नहीं है कि उनका क्या बना. उन 900 में से एंटीवायरल ट्रीटमेंट 706 के करीब को रेकमेंड हुई और 615 लोग ऐसे थे जिनको हम हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट शुरू कर पाए. तो ओवरऑल अगर देखें तो 25% could be linked to care. When we did this, we went out to see what were the factors which influence the patients to obtain free or subsidized treatment for chronic hepatitis C in a resource poor setting. और ये हमारा पेपर था which was accepted in American College of Gastroenterology. हमने अपना डेटा प्रेजेंट किया और इसमें तकरीबन जो है अगर आप देखें फाइनेंशियल इश्यूज थे तकरीबन 69% पेशेंट में. ट्रांसपोर्ट इश्यूज वर देयर, फियर ऑफ साइड इफेक्ट्स 16% लोग कहते थे कि दे प्रेफर नॉन मेडिकल थेरापी, कोई हकीम की दवाई दूसरी. और एक आखिरी चीज सी के ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर अनअवेयर कि ये डिजीज क्या कर सकती है, व्हिच इज वेरी डिस्टर्बिंग. क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस है, अगर एक तो लोगों को पता नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस सी है, दूसरा अगर पता है तो उनको उसकी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का अंदाजा नहीं. हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे गए और फिर हमने एक प्रोजेक्ट किया गुजरांवाला में, गरजाक एरिया है जहाँ पे हमने कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन की, एक हेपेटाइटिस मकाओ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट.
और इसमें जो फर्क था, उसमें हमने एक पॉपुलेशन को टारगेट किया। उस पॉपुलेशन को हम जानते थे, हमने जो नाज़म था उसको इन्वॉल्व किया जो उस एरिया का था। हमें उन्होंने 5 गलियों के अंदर तकरीबन 2300 लोग थे, क्योंकि वो वोटर लिस्टें वगैरह उनके पास होती हैं। उन लोगों को वे रीच्ड आउट। हमने कैंप पर स्क्रीनिंग करने से पहले वहां पे पूरी कैंपेन की, उनको मैसेजेस पहुंचाए बैनर से, मस्जिद से, डोर टू डोर कैंपेन की। और फिर हमने आई थिंक 5 कैंप्स किए उसी एरिया में जो कि उनके वॉकिंग डिस्टेंस पे था। किसी सूरत में भी वो 500 मीटर से ज्यादा का एरिया नहीं था, और वो कोई क्लिनिक नहीं था, वो एक नाज़म का दफ्तर था जो उनका डेरा था, जहां पे हमने उन लोगों को बुलाया। और आउट ऑफ 2300 पीपल आप देख सकते हैं 1417 पीपल, जो कि 61.6% है, दे एक्चुअली केम फॉर स्क्रीनिंग। आउट ऑफ 1400, 202 वर anti-HCV पॉजिटिव। ये तकरीबन 14% के करीब बनता है। आउट ऑफ 202, 119 वर वायरीमिक। ये वो लोग थे जिनका PCR पॉजिटिव था, तो हमारी वायरीमिक रेट तकरीबन 63% था। इन 119 में से 100 लोगों को हमने ट्रीटमेंट शुरू किया और 89 लोगों ने कंप्लीट किया, और हमारे पास 80 लोग जिनका SVR12 हम चेक कर सके, उनमें से 76 थे जिनका SVR पॉजिटिव आया। तो ये इंटरवेंशन आपको बताती है कि अगर आप इस तरह के माइक्रो एलिमिनेशन प्रोजेक्ट में जाते हैं, आप प्रिपेयर होकर जाते हैं। एंड बाय द वे दिस वाज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। इनकी स्क्रीनिंग से लेके PCR टेस्टिंग, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसमें हमने सिंपल एल्गोरिदम्स बनाए थे। जब, और जो एक और चीज हमने डिफरेंट की थी पिछले मॉडल से, कि जब पेशेंट वहां पे आया, उसका anti-HCV पॉजिटिव आया, हमने उसका CBC, LFT, क्रिएटिनिन और PCR का सैंपल उसी वक्त ले लिया। उसकी बुनियाद पर जो वायरीमिक पेशेंट थे जिनका PCR पॉजिटिव था, उनको हमने एप्री कैलकुलेट किया। एप्री आप जानते हैं वो प्लेटलेट काउंट और AST से कैलकुलेट हो जाता है। जिनका एप्री लेस देन 1.5 था, उनको सॉफ और डेक्ला 3 माह का ट्रीटमेंट दिया। हमने उनको दोबारा देखा नहीं, हमने उनके घरों में इलाज पहुंचाया। या जो नहीं आए, जो आगे डेरे पे जो हमने दिन डिसाइड किए थे, वहां पे ट्रीटमेंट पहुंचाया। एंड वी जस्ट एंश्योर्ड थ्रू दिस कम्युनिटी वर्कर्स कि वो ट्रीटमेंट ले लें। और 3 महीने बाद हमने कोई ऑन ट्रीटमेंट टेस्ट नहीं कराया, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, और उनका 3 महीने के बाद हमने SVR चेक किया। जिनका एप्री 1.5 था, जो तकरीबन 40% के करीब लोग थे जिनका 1.5 या उससे ज्यादा था, उनको हमने क्लिनिक में बुलाया, उनका एक अल्ट्रासाउंड कराया और अल्फा फीटोप्रोटीन चेक किया, और उनको हमने स्क्रीनिंग एंडोस्कोपी ऑफर की, जो शायद 1-2 से ज्यादा लोगों ने नहीं कराई। बहरहाल इन लोगों को सॉफ और डेक्ला 6 मंथ्स के लिए दिया, और चूंकि और साथ हमने रिबाविरिन ऐड की। रिबाविरिन की वजह से फिर इनके हमें टेस्ट करने पड़े, CBC वगैरह, जो कि हमने उसको सिंप्लीफाई किया। जिनका 1 महीने बाद स्टेबल थे, उनका यही था कि अगर सिम्टम्स को डेवलप हुए तो, अदरवाइज हमने उनको 6 मंथ्स ट्रीटमेंट दे के उनका SVR चेक किया। So this was a fully funded project with strong local area influential support, and clinic was within 500 meters radius, and we were fortunate to have very motivated volunteers for that. थोड़ा सा मैं आपको पाकिस्तान का स्केल बता दूं। हमारे यहाँ ये कोलिशन फॉर ग्लोबल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन का डेटा है पाकिस्तान के ऊपर, और ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट अभी रिसेंटली हुई थी कुछ हफ्ते पहले, उसमें ये डेटा शेयर किया गया था। हमारे यहाँ 2.5% हेपेटाइटिस बी है, 4.3% हेपेटाइटिस सी। आप देख सकते हैं पंजाब 4.8, सिंध 3.8, बलूचिस्तान 3.1, KP 3.8, और जो डेटा ड्रग अब्यूजर्स में है वो 62% के करीब है इसकी जो प्रेवलेंस है। रफली 10 मिलियन पीपल, ये 1 करोड़ बंदा बनता है जो कि हेपेटाइटिस के साथ पाकिस्तान में मौजूद है, एंड इट्स अ सेकंड हाईएस्ट बर्डन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में हर साल
30,400 न्यू हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है और 461,000 न्यू हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है अनफॉर्चुनेटली। ये मॉडर्न एस्टिमेट है और ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर्स हमारे यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिस्ट्री ऑफ बीइंग इन हॉस्पिटल, डेंटल ट्रीटमेंट, यूज ऑफ इंजेक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सर्जरी। तो अभी भी आप देखें सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस डॉक्टरों और अस्पतालों वाली जगहों से फैल रहा है पाकिस्तान में। हेपेटाइटिस बी रिलेटेड डेथ्स आर अराउंड 12,000 और हेपेटाइटिस सी की हमने थोड़ी बात की थी 17,000 जो कि रेंज 12,000 से तकरीबन 24,000 तक जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कवरेज इन न्यूबॉर्न ये 3 तक % हुई। थर्ड डोज वैक्सीन सिर्फ 14% है। दिस इज वेयर द मिसिंग मिलियंस आर। हमें इसलिए कहते हैं कि हमें मैसिव स्क्रीनिंग कैंपेन्स पे जाना है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्फेक्टेड they are unaware of their hepatitis status। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी के टेस्ट 2018 से लेके 2020 तक जो नंबर्स हैं वो फॉल कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स ऑन ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस बी यू कैन सी 21,000 के करीब पेशेंट थे 2018 में, अराउंड 19,000 2019 में एंड 7,400 2020 में। और हेपेटाइटिस सी में अगर आप देखें तो 22% ऑफ द पर्सन लिविंग विद हेपेटाइटिस सी दे वर अवेयर, जो कि डायग्नोज हुआ है। ये 2020 का डेटा है। वायरीमिक रेट जो जिनका पीसीआर हुआ आप देख सकते हैं कि ये नंबर परसिस्टेंटली फॉल कर रहा है। और नंबर ऑफ पर्सन डायग्नोज एज यू कैन सी 2017 में 152,000 and around 4 lakhs in 2018, 177,000 in 2019 and 163,000 in 2020. Okay. So treatment success rate is very good, as we had in our project in Garjak. अभी तक जो क्यूमुलेटिव डाटा है बिटवीन 2004 एंड 2020 तकरीबन 2.65 मिलियन लोग हैं जिनका हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट हो चुका है। ये नंबर पीक किया था 2018 में। 2015 से अब पीछे चले गए जब इंटरफेरॉन और जब बाकी चीजें थी तब ये नंबर्स के बहुत हौसला अफजा नहीं थे। DAAs आए और जब उनकी हमारे पास जेनेरिक्स आने शुरू हुए, उनकी प्राइसेस कम हुई तो नंबर सर्ज, बट अनफॉर्चुनेटली द नंबर इज नॉट व्हाट इट शुड बी। ये आपको डेटा दे रहा है टोटल सेल ऑफ एंटीवायरल का, जिसमें आप देख सकते हैं जो ट्रीटमेंट रेट का पाकिस्तान में 2015 में तकरीबन 97,000 है, 2016 में 1,90,000, 17-18 में काफी पेशेंट ट्रीट हुए, 2019 और 20 में आप देख रहे हैं कि नंबर फॉल कर रहे हैं। इसमें प्राइवेट मार्केट और पब्लिक मार्केट है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का क्यूमुलेटिव डेटा है। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि पब्लिक मार्केट में जहां पे आपको नजर आ रहा है ये परचेज ऑफ ड्रग के हिसाब से है। अगर 2018 में 3.5 लाख की परचेज हुई है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जरूरी नहीं कि 3.5 लाख पेशेंट भी ट्रीट हुआ हो। तो इन चीजों को भी आपको ज़हन में रखना है। हमें करना क्या है, हमें तकरीबन 8,80,000 मरीज को ट्रीट करना है अगर हम एलिमिनेशन का टारगेट अचीव करना चाहते हैं। और बहुत ही हम अगर उस पर काम करें और कंप्रोमाइज करने की कोशिश करें तो नियरली 500,000 पेशेंट नीड टू बी ट्रीटेड एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर नोवेयर नियर दैट। Problems, blood transfusions are one of the major contributors for the higher rate of hepatitis C in Pakistan.
As per one estimate, almost half of the blood donors are not screened for hepatitis virus. B ho, C ho, HIV ho. There is a lack of coordination between federal, provincial and local governments. जब से 18th amendment हुई उसके बाद से ये coordination बहुत अच्छा unfortunately develop नहीं हो सका. Effective monitoring and evaluation of provincial hepatitis control programs is lacking. General population screening implementation remains challenging. And again, private sector में हेपेटाइटिस सी के जो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग है जैसे पीसीआर वगैरह या सीवी कोर एंटीजन वगैरह, इट रिमेन्स एक्सपेंसिव. और अगर लोगों को अपनी जेब से कराना पड़ता है, जिस तरह पाकिस्तान में 70% ऑफ द हेल्थ इज आउट ऑफ पॉकेट, तो बहुत बड़ा इशू है. हम हेपेटाइटिस एलिमिनेशन पे बहुत सारी बात करेंगे और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आवर PSH 2022 मीटिंग is starting from 23rd to 25th of September in Lahore. So please be there. हमारा एक पूरा प्रोग्राम है. आप गेट्स के रिप्रेजेंटेटिव से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. They can guide you. आप PSH की वेबसाइट है, आप वहां पे भी करके they can आपको प्रोग्राम और उसके बारे में पता चल सकता है. This is another project which we are working. मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं. Basically, University London it's been supported by a grant from Wellcome Trust UK on treating hepatitis C in Pakistan, strategies to avoid resistance to antiviral drug. तो इसमें हम बहुत सारे सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. इसकी 3 साइट्स हैं पाकिस्तान में और 25,000 लोगों ने स्क्रीन होना है. और एक आगा खान यूनिवर्सिटी, एक डाउ यूनिवर्सिटी और तीसरा गुजरांवाला में थ्रू पारसा ट्रस्ट. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? टू डिटरमिन द रेट ऑफ SPR इन पीपल विद हेपेटाइटिस C इन पाकिस्तान ट्रीटेड विद द फर्स्ट लाइन एंटीवायरल ड्रग्स. बेसिकली ये सॉफ और डेक्ला का डेटा होगा जो कि हम यूज करते हैं, जो सस्ता भी है, और सारे हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम्स जो प्रोविंशियल प्रोग्राम्स है वो इसको यूज कर रहे हैं. हम एनुअल इंसिडेंस देखना चाहते हैं. एनुअल इंसिडेंस ऑफ न्यू हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन इन अनइन्फेक्टेड पीपल एंड दोज हु हैव बीन क्योर्ड ऑफ देयर इन्फेक्शन. वो लोग जो आज नेगेटिव हैं उनको हम 1 साल बाद दोबारा बुला के उनको स्क्रीनिंग करेंगे. और अगर हमने किसी को ट्रीट किया है और उसने SVR12 अचीव किया है, 1 साल बाद उसका PCR दोबारा करेंगे, उसने दोबारा तो नहीं पकड़ लिया. We also want to determine the cost effectiveness of treating people for hepatitis C in Pakistan, taking due account of the rate of response and reinfection rates. The type and frequency of hepatitis C resistance, ये अभी तक पाकिस्तान में कोई स्टडी नहीं हो चुकी कि अगर कोई ठीक नहीं होता तो कौन सा रेजिस्टेंट वेरिएंट है और उसके लिए क्या करने की जरूरत है. ये ज़हन में रखें, अगर 95 या 96% सक्सेस रेट है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटिंग 100,000 पीपल, तो 4,000 लोग ऐसे निकल आएंगे जो क्योर नहीं अचीव करेंगे. तो उसकी वजह क्या हुई, उसको हम देखना चाहते हैं. And lastly, the type and frequency of HCV genetic variants in Pakistan that are associated with liver cancer. तो ये भी genetic analysis इस study का हिस्सा है और we are very hopeful at the end of 5 years, 5 साल का ये project है और by I think 2024, sorry, not 2024, तकरीबन 26 or 7 tak we'll have some answers to some of these questions. So way forward, we need large scale mass media campaigns. We need to decentralize hepatitis C treatment to health center and basic health unit. ये exactly project ECHO का vision है. ये हम सब का विजन है. पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी भी इसी के ऊपर काम कर रही है कि हमने ट्रीटमेंट को डिसेंट्रलाइज करना है. ये स्पेशलिस्ट का डोमेन नहीं है.
ये ट्रीटमेंट प्राइमरी केयर में जाना है. We need to have public-private partnership, effective coordination across federal, provincial, and local governments, general population screening and scale up of point of care testing. इजिप्ट के मॉडल में वो जब कैंप में जाते थे वहीं पे टेस्ट करके 3 घंटे बाद ट्रीटमेंट हाथ में पकड़ा के निकलते थे. अगर हम ये साबित कर चुके हैं कि अगर आपने एक रैंडम कैंप किया और लोगों को उस वक्त एंगेज ना किया तो वो दोबारा ट्रीटमेंट के लिए उस तरह से नहीं आते. We need to scale up coverage of hepatitis B birth dose vaccination nationally and improve hepatitis B virus vaccination for population at risk. Evolve a comprehensive monitoring and evaluation framework for hepatitis elimination program. ये इसकी सबसे कामयाब मिसाल है जो हमने कोविड में देखी, जहां पे मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा थी और अभी भी है किसी हद तक. एनसीओसी का डेटा उनकी वो एक डैशबोर्ड से प्रोविंस लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, और लोगों में एक मोटिवेशन थी. एंड आई थिंक वी नीड टू शो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट कि हम इसको करके और इसको किस तरीके से आगे लेके चलें. हमें प्राइवेट क्लिनिक्स पे जनरल प्रैक्टिस को यूज करना है, प्राइमरी केयर फिजिशियंस को यूज करना है. बहुत सारी जगह ऐसी हैं, अगर हुकूमत में, अगर मैं पंजाब की बात करूं, वो 20 या 40 फिल्टर क्लिनिक्स बन जाएं. लोगों की वहां पे रीच नहीं है. हमने उन डॉक्टर्स को रीच आउट करना चाहिए जो ये ट्रीटमेंट अपने क्लिनिक्स पे क्लोज टू द डोर स्टेप्स डिलीवर कर सकें. So I'm going to stop here. Thank you very much for patient listening. I would like to hear from you. आपके कोई comments हैं इसी सिलसिले में, कोई question है what we can answer. ये इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो हमें इसके जो है इसके ऊपर भी काम करना है और हम आपकी सजेशंस को जरूर आगे लेके चलना चाहेंगे. थैंक यू. ओवर टू यू किरण. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर असद. somebody wants के आप PSH का जो प्रोग्राम है उसका आई थिंक बैनर या अगर हम शेयर कर सकें फॉर द अपकमिंग जो सितंबर में है. जी, ये बैनर तो वो मैंने जो वही है जो मैंने शो किया था 23 to 24 23, 4, 5 सितंबर को है, लाहौर में है. वेन्यू विल प्रोबेबली बी द पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, लेकिन हम थोड़े से एप्रीहेंसिव हैं इसको कंफर्म करने में, क्योंकि एक क्रिकेट टीम का दौरा है और वो अगर वो क्लैश कर गया तो वी मे हैव टू स्विच द वेन्यू. लेकिन डेट्स आर फाइनल और आई थिंक उज़ैर विल स्टे इन टच विद यू. वो जो भी चीज होगी हम उसको शेयर कर सकेंगे, और जैसे ही प्रोग्राम फाइनल होता है तो हमारे सारे मीडिया पे और जो एको के रेगुलर सेशंस हैं उस पे हम ये करते रहेंगे. ठीक है जी. if anybody has a question, आप Dr. Altaf is here. I think Dr. Altaf, we would like to hear from you. Thank you, Asad, for a wonderful talk. I totally agree with you that the problem of hepatitis C, as we are talking about hepatitis C today, is massive और hidden है. हमें इसको unearth करना है somehow. Short of जैसे इजिप्ट में उन्होंने किया था कि 60 मिलियन पॉपुलेशन को या 80 मिलियन पॉपुलेशन को स्क्रीन किया था. शॉर्ट ऑफ दैट हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना है कि हम पेशेंट्स को मोटिवेट करें कि वो अपना टेस्ट कराएं. टेस्ट भी फ्री है, इलाज भी फ्री है और कामयाबी भी बहुत हाई है. सो यू नो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम देयर नाउ कि सिर्फ उन तक ये बात पहुंचानी है कि बाहर आए, अपना टेस्ट कराएं और इलाज कराएं. सो यू नो आइडियल तो ये होगा कि हुकूमत के लेवल पे जैसे इजिप्ट में किया था कि पूरी पॉपुलेशन को स्क्रीन करें और जो
जिसको पकड़े वहीं पर उसको इलाज दें, जैसे आपने अभी बताया। शॉर्ट ऑफ दैट यही रह गया है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, ट्रीटमेंट सेंटर्स डिसेंट्रलाइज करें जैसे आपने बताया, और लोगों में ये शऊर पैदा करें कि प्लीज आप अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट भी फ्री, इलाज भी फ्री, और कामयाबी भी बहुत ज्यादा 100% के करीब। तो ये मैसेज उन तक पहुंचेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। ये फिगर 5 से 8 लाख लोगों को सालाना ट्रीट करना एक बहुत बड़ा टास्क है, जबकि हम 4 लाख नए मरीज पूल में डाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। सो प्रिवेंट भी करना है और इलाज भी करना है। ये बहुत बड़ा टास्क है और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। थैंक यू वेरी मच असद, थॉरली एंजॉयिंग योर टॉक। थैंक यू सर। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन ये है कि क्रॉनिक डीकंपनसेटरी लिवर डिजीज ड्यू टू हेपेटाइटिस सी, पीसीआर इज नेगेटिव, हाउ शुड वी ट्रीट? देखें, हेपेटाइटिस सी में अगर वायरस नेगेटिव है तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आप इस पेशेंट को, जो उसकी लिवर का जो स्टेटस है डीकंपनसेशन में, डिपेंड करता है। अगर वो चाइल्ड ए है और कोई बड़े इश्यूज नहीं है, वेरिसियल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, इफ नीडेड बैंडिंग होनी चाहिए। और ये मत भूलें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसको HCC सर्वेलेंस में रहना है। अल्फा फीटोप्रोटीन और अल्ट्रासाउंड फ्रॉम एन एक्सपीरियंस सोनोलॉजिस्ट जो कि हेपेटाइटिस का कैंसर, लिवर कैंसर पिक कर सके, हर 3 से 6 माह बाद वो आप डिसाइड कर सकते हैं, उसका होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर असाइटिस एनकेफेलोपैथी और बाकी चीजें हैं तो वो जिस तरह के जो ट्रीटमेंट होगा, और अगर खुदा न खास्ता डीकंपनसेशन वर्स होती है उसमें फिर आप उनको जो है फिर आप रेफर करते हैं सेंटर, और यू कैन डिपेंडिंग अपॉन जो भी सिनारियो है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। एक और चीज जो बड़ी क्लियर है वो ये है कि in a private practice, in a general practice, I would say, प्राइमरी केयर पोजीशन के लेवल पे हम ये अपने एको प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि चाइल्ड ए तक यू शुड ट्रीट, लेकिन जब पेशेंट चाइल्ड बी में आपके पास आता है तो बेटर रेफर देम, क्योंकि उनके इश्यूज आ सकते हैं विद ट्रीटमेंट। तो इसमें ट्रीटमेंट का फिर भी फायदा होता है अगर चाइल्ड बी है, अर्ली बी है, अप टू B8 हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर हम वायरस खत्म कर देते हैं तो लिवर को एडवांटेज हो सकता है, और जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, डीकंपनसेशन डिले हो जाती है, लिवर कैंसर कर उसका खत्म तो नहीं होता चांस, लेकिन वो कम हो जाता है, and it may delist the patient from liver transplant in certain settings. लेकिन आप अगर खुद से in a general practice clinic इनको we would recommend कि ट्रीट ना करें। इनको बेहतर है अगर करना भी है in consultation with hepatologist ट्रीट करें। जो दूसरी कोमॉर्बिड्स हैं लाइक डायबिटीज वगैरह, वो आप कंटिन्यू करेंगे जो भी ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन ये है कि सॉफ और डेक्ला गवर्नमेंट के सेंटर्स में मिल रहा है और रिबाविरिन नहीं है। देखें, जो जिनमें फाइब्रोसिस है एप्री मोर देन 1.5 अनसेरोटिक पेशेंट, हम उनमें प्रेफर करते हैं और ये प्रूवन है कि रिजल्ट्स आर बेटर विद रिबाविरिन। ये इशू है आपके साथ हमने 1.5 साल काम किया। अनफॉर्चुनेटली वेरी रिसेंटली फॉर सम रीजन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स और अदर रीजंस, हमें अब वो कोलैबोरेशन इस वक्त एक्टिव नहीं है, लेकिन आई एंश्योर्ड कि हमारे पेशेंट्स को रिबाविरिन मिले, और चाहे हमें वो परचेज करके पेशेंट्स को देनी पड़े, लेकिन हम इन लोगों को देते रहे जिनका एप्री मोर देन 1.5 था और जो सेरोटिक पेशेंट थे। यहाँ पे ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए, जितना पेशेंट डीकंपनसेशन या चाइल्ड स्कोर ज्यादा होगा, रिबाविरिन के साइड इफेक्ट्स प्रोनाउंस होते हैं और आपको डोज एडजस्ट करनी पड़ती है, लेकिन टू द लिमिट ऑफ टॉलरेंस हम रिबाविरिन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि SPR जो है वो बेहतर हो सकता है। तो regarding diabetes, देखें इंसुलिन और हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, यूजुअली दीस पेशेंट, आपके पास जितने भी
बिगवानाइड्स हैं, मेटफॉर्मिन बहुत ज्यादा डिकम्पनसेटेड ना हो हम वो देते हैं। चाइल्ड सी में लिवर फेलियर में ऑफ कोर्स इश्यूज हैं और यूजुअली इनकी शुगर्स लो ही होती हैं, लेकिन वहां पे हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को प्रेफर करते हैं। लेकिन चाइल्ड ए को सिरोटिक में, चाइल्ड बी में वी हैव अ फुल रेंज ऑफ ड्रग। और वैसे सीएलडी में आम जो कि जो कि नॉन सिरोटिक पेशेंट है, उसमें यू जस्ट ट्रीट देम इन अ नॉर्मल फैशन, जिस तरह आप बाकी लोगों को ट्रीट करते हैं। There is another question: a patient in which hepatitis B DNA PCR is greater than 20,000 but serum ALT is normal, should the patient be treated? इसकी बड़ी डिटेल में हमारे एको सेशंस में डिस्कशन पहले हो चुकी है। I'll give you an answer, लेकिन प्लीज फॉलो अस, क्योंकि हमारी केस बेस्ड डिस्कशन में हेपेटाइटिस बी हर महीने डिस्कस होता है। 20,000 इज अ हाई वायरल लोड। यहाँ पे पेशेंट के बाकी फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें एज है, जिसमें उसकी फैमिली हिस्ट्री है, आप किस एएलटी को नॉर्मल कह रहे हैं। यूजुअली आप जो एएलटी अप टू 19 इन फीमेल एंड 30 इन मेल्स, अगर इससे ज्यादा है तो विद 20,000 वायरल लोड दिस पेशेंट विल मेरिट ट्रीटमेंट एज फार एज आई एम कंसर्न। ठीक है, हम ये जरूर कर लेते हैं कि आप इसमें ये भी देखते हैं, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया कि इसका ई एंटीजन स्टेटस क्या है। तो यूजुअली फॉर द फर्स्ट टाइम जो पेशेंट आते हैं, अगर कोई और इशू नहीं है तो आई मे वेट फॉर 6 months टू रिपीट द टेस्ट एंड सी। लेकिन अगर पेशेंट को 2-3 सालों से हेपेटाइटिस बी है, पहले का रिकॉर्ड है, ई एंटीजन नेगेटिव में तो डेफिनेट ट्रीटमेंट है। ई एंटीजन पॉजिटिव में आप देख सकते हैं जो पेशेंट की एज के हिसाब से, उसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उसकी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से। तो ये सारी चीजें जो है ये हम अगर आप यूट्यूब पे भी जाएं तो ये लास्ट टाइम भी बड़ी डिटेल में डिस्कस हुई थी, अल्ताफ साहब ने इसको डिस्कस किया था। तो यस, हाई वायरल लोड I would be inclined to treat, लेकिन a lot of other factors will need to be taken into consideration before starting treatment. Any other comment or question? We still have time. आपके पास ऑप्शन है रेज हैंड की, अगर आप के एरिया में कोई प्रॉब्लम है, आप गाइडेंस चाहते हैं किसी किस्म की, तो वो भी हम एलिमिनेशन के पॉइंट से Gets Pharma is very active in helping poor patients. I'm sure Gets की representative हैं. If anyone would like to add Gets elimination के लिए क्या कर रही है और किस तरह से facilitate कर सकती है in primary care, Bilal, if anybody can, from your company can add something. Sir, Assalamu alaikum. Thank you so much, sir, for your invitation. First of all, I would like to congratulate all the PARSA team and especially Dr. Asad for arranging capacity strengthening sessions on monthly basis. And today we are, celebrating in World Hepatitis Day, and Get From is also putting our efforts in the shape of walks and in the shape of conducting seminars in order to create awareness among the people that how can we reduce the burden of this disease. Since the motive of WHO, which is also aligned with this motive to eliminate hepatitis from Pakistan, so we as a medical fraternity, as all stakeholders should collaborate together in order to eliminate this burden. So yes, Gas Farm is always here to support such events, such causes to minimize the burden of this disease. So thank you so much, sir, again for your efforts. Thank you. Gas is always here to support. आप लोग बिलाल, जो मेरा क्वेश्चन ये है, ओके, तो आप बाकी लोगों तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि फॉर प्राइवेट एंड स्क्रीनिंग में, और आप क्या पसंद यूजुअली करते हैं? So basically, we are going to conduct screening programs in different institutions and clinics in order to find out the new patient. So yes, on basic screening testing like antibody testing we are conducting. So later on patient,
himself going to conduct PCR as well for the final diagnosis. So initial testing we are doing. There's one question is about hepatitis B का जो treatment है हमारे पास जो इस currently drugs available हैं apart from pegylated interferon जो के लिखे हुए question में भी entecavir tenofovir एक TDF है जो के tenofovir disoproxyl fumarate है और एक alafenamide है जो TAF है, which is preferred. जहां तक तो देखें हेपेटाइटिस बी में आपने लिखा नाइव और रीट्रीटमेंट, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त रीट्रीटमेंट वाली तो बात नहीं है। हेपेटाइटिस बी में यूजुअली जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं मोस्टली वो किसी बेंचमार्क के तहत होती है और तीनों की अच्छी एफिशिएंसी है और चॉइस वेरी कर जाती है। पेशेंट अगेन उस आप किस वजह से दे रहे हैं और रेजिस्टेंस प्रोफाइल सारों के ठीक है, लेकिन टैफ प्रेफर्ड है जिनके रीनल इंपेयरमेंट है, बोनी डिजीज के इश्यूज है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, वहां पे टैफ प्रेफर्ड है। अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है। जिनके रीनल इश्यूज हैं वहां पे एंटाकाविर हम प्रेफर करते हैं। तो ये थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बट ये इस तरीके से है। और किड्स विद वायरल हेपेटाइटिस हाउ टू मैनेज देम, देखिए ये सारा एज पर गाइडलाइन है। आपको हेपेटाइटिस ए का तो आपको पता है कि सपोर्टिव ही है, ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ इलनेस आपने उसको ट्रीट करना है। बी में एक क्वेश्चन अराइज करेगा वेदर टू मॉनिटर और वेदर टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ये आपको हेपेटोलॉजिस्ट की उसके साथ कोऑर्डिनेशन में जो भी आपके नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन जो हेपेटोलॉजिस्ट है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। और सी में यूजुअली आप बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, बट अगेन हम यही रिकमेंड करेंगे कि बच्चों को आप प्राइमरी केयर में बेहतर है कि आप जो आपके नियरेस्ट और पीडियाट्रिशियन उसका कंफर्टेबल इन ट्रीटिंग चिल्ड्रन विद हेपेटाइटिस, और आपके जो भी नियरेस्ट सेंटर है लिवर हेपेटोलॉजी का जहां पे आप उनको रेफर कर सकते हैं। अबाउट मास स्क्रीनिंग, 2019 में there was a seminar in Islamabad which was presided by President Alvi, और उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर भी थे और ये कमिटमेंट दी थी कि they will do it, and target was to screen I think 60% of the population, and that happened, that coincided with World Hepatitis Day in 2019. उसके सारे प्लान्स भी बन गए जिसका PC1 होता है और सब कुछ होता है। Unfortunately, right at the time of implementation, COVID struck. हम लोग भी as ECHO we were involved to some extent with these developments. When COVID came, सब कुछ बैक बर्नर पे चला गया और ये बहुत बड़ा लॉस है। I'm afraid अगर आप देखें तो हमारे पास डेटा भी इतना अच्छा नहीं है। ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग फेल डाउन, ट्रीटमेंट जो हम करना चाहते थे जिन लोगों को, वो भी जो ट्रीटमेंट रेट्स थे फेल डाउन, तो बहुत ज्यादा इसका नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट इज आफ्टर, बट मैं थोड़ा सा डिप्रेस जरूर हूँ कि करंट पॉलिटिकल टर्मोइल में और इकोनॉमिक टर्मोइल में अब लगता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर असद, डॉक्टर आमना से अगर हम क़याम का और एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस के बारे में जो उनकी एक्टिविटीज हैं। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर आमना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, ओके। क़याम का अभी करंट ये है कि हम एक दो तबी वालों के साथ हमारी बात चल रही है कि अगर हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर लें, क्योंकि वो आपको पता है प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक अगर आप ऐप है बेसिकली उन्होंने पहले बनाई थी, अब उनके बहुत ज्यादा सेंटर्स हैं जहाँ से वो डिफरेंट लेबोरेटरीज के साथ काम करते हैं और सैंपल्स लेते हैं और उनके एक्सपर्ट्स वहाँ पे जाते हैं।
तो उनके साथ हम मोस्ट प्रॉब्ली एक करेंगे, प्रोग्राम करेंगे बच्चों के साथ, और उसमें बच्चे भी एनरोल्ड हैं उस प्रोग्राम में। तो हम स्क्रीनिंग कैंप लगाएंगे और अवेयरनेस के लिए जो है ना पम्फलेट्स वगैरह वो हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी देखें, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हमारा ये होगा। तो उसके अलावा बाकी ये है कि बाकी लाहौर के अलावा अभी इस्लामाबाद या रुजावाना में तो कोई प्रोग्राम नहीं है। लाहौर में हमारा है कि हम उनकी कोलैबोरेशन के साथ अवेयरनेस ये ड्राइव चलाएं। डॉक्टर आमना, थोड़ा सा प्याम के Thank you. बारे में जरा बता जी, दीजिए। प्याम एक्चुअली हमारा है जिसके अंदर हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं छोटे बच्चों को थ्रू द स्टूडेंट्स, ओ एंड ए लेवल स्टूडेंट्स। ठीक है, ओ ए लेवल के स्टूडेंट्स हो या मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट जो हमारे साथ काम करना चाहें, और हम स्टोरी टेलिंग के जरिए स्कूल्स में जाके बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, और साथ भी हैव अ गेम जो हम उनको देते हैं अबाउट हेपेटाइटिस सी, कि कौन सी बी एंड सी के कौन सी चीजों से वो स्प्रेड होता है और कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। फिर उस बच्चे वहीं पे उनके साथ गेम्स खेलते हैं। दे आर वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट होती है, and जो स्मॉल किड्स हैं दे आर नेवर नॉट स्केयर्ड फ्रॉम दोस स्टूडेंट्स, क्योंकि बीइंग डॉक्टर या हम बड़े हैं तो हमें देख के वो हो जाएंगे और उस तरह मैसेज नहीं लेंगे। देन दे टेक दैट मैसेज होम और वो अपने पेरेंट्स को और हर एक को बताते हैं कि जी बार्बर शॉप पे जाना है तो आपका जो है ब्लेड वो आपका न्यू हो, स्टेरलाइज्ड हो या बिल्कुल नया यूज हो, शेयर नहीं करनी चीजें, कौन सी चीजें शेयर कर सकते हैं कौन सी नहीं। तो इसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ हेल्प करते हैं। थैंक यू। मेरे ख्याल में आप सब लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं टुडे, अगर आपको प्याम इस प्रोजेक्ट एको यूथ एम्बेसडर्स मूवमेंट, और आप लोग थ्रू गेट्स टीम और थ्रू ज़ैर यू कैन रीच आउट किसी भी आपके शहर में अगर आप इसमें चाहते हैं तो वी कैन सेट अप लोकल चैप्टर देयर। जी, ओवर किरण, आप देख लें, इट इज नथिंग एल्स, आई थिंक वी कैन। जी, if we don't have any other question or comment, I think we should wrap up. We do encourage cases from spokes, और अगर आपके पास कोई ऐसे cases हैं जो हमसे आप शेयर करना चाहते हैं तो you can contact our team. हम आपको जो केस है आपके upcoming sessions में present भी किया जा सकते हैं. So we are grateful and thankful to the spokes and our experts and Gets Pharma for the unrestricted educational grant, and special thanks to Khalid Mahmood Sahab, and of course our Parsa Eco team Pakistan. We hope this collaboration with Risec Foundation will produce more and informative sessions in the future. We will sign off for today. Allah Hafiz. Thank you, Dr. Asad. Uzair, you can call off the meeting. Sure, ma'am. Allah Hafiz to all of you.